Hello everyone. Welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 22. Before we start solving this question, let's have a look at question of day number 23. A fighter plane is flying horizontally at a height of 250 meters from ground with constant velocity of 500 meters per second. It passes exactly over a cannon which can fire a shell at any time in any direction with a speed of 100 meters per second. Find the duration of time for which the plane is in danger of being hit by a cannon shell. A student of mine has asked this question, so I thought कि मैं आप सबके साथ ये share करूं. Try this question out, and it's a very good question of projectile motion. I'll upload the solution tomorrow at 4 p.m. as usual. For now, let's come back to our question number 22. A solid body of heat capacity C is kept in an atmosphere whose temperature is 300 Kelvin. So the temperature of atmosphere, that is temperature of surroundings, is 300 Kelvin. At time t is equal to 0, the temperature of X is 400 Kelvin. Okay, let's move on to the solution. So we have a body X having temperature of 400 Kelvin at t is equal to 0. And the temperature of your atmosphere is 300 Kelvin. All right. It cools according to Newton's law of cooling. I hope so you are familiar with Newton's law of cooling. Soon I'll be uploading some YouTube short videos on the concept of Newton's law of cooling, and I'll tell you how you can apply the Newton's law of cooling in your daily basis. One more thing, a student has requested me for questions on block over block problems, जिसमें जैसे डब्बे के ऊपर डब्बा रखा होता है, आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है कि इकट्ठे चलेंगे नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो किस एक्सेलरेशन चलेंगे, फ्रिक्शन कितना लगेगा, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो उसमें बन सकते हैं. तो after solving this question and the question of day number 23, which was asked by one of my another student, I'll be uploading 2-3 questions on block over block problems. Okay, coming back to this question, it cools according to Newton's law of cooling. All right. At time t1, its temperature is found to be 350 Kelvin. तो ऐसा करते हैं. अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? At time T1, the body X is connected to a large body Y at atmospheric temperature TA through a conducting rod of length L, cross section area A and thermal conductivity K. आगे बढ़ते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे पहला पार्ट देख लेते हैं. तो what does the Newton law of cooling says? क्या बोलता है वो कहता है the rate of cooling or the rate of temperature drop of a body is directly proportional to the temperature difference of the body and the surroundings, but make sure that the temperature difference between the body and the surrounding is not so much large, is not so very large. Okay, अब इसको देखो, थोड़ा और मैं आपको आसान करने की कोशिश करता हूं. आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि कोई भी बॉडी किस रेट से कूल डाउन होगी या किस रेट से टेम्परेचर लूज करेगी, वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, किसके, सराउंडिंग और बॉडी के. पर देर इज अ कंडीशन for you to apply Newton's law of cooling, which is कि the temperature difference between the body and the surroundings must not be large. For example, if I'll say that the temperature of body say is 70 degrees Celsius and that of temperature of surroundings or the room temperature say it is 25 degree or 30 degrees Celsius, so the temperature difference is not large, it is around 30-40 degrees Celsius only. But suppose I take a red hot iron, suppose at a temperature of 1000 degrees Celsius, and the room temperature is 25 degrees Celsius. So the temperature difference, the temperature gap between that red hot iron and the surroundings is very, very, very large. So at that point,
it will not lose heat according to Newton's law of cooling. Okay. For Newton's law of cooling to be valid, the temperature difference must be very small or not so much very large. So this dt by dt is rate of cooling. Rate of cooling का मतलब dt is change in temperature and d small t is change in time. Okay. तो टेम्परेचर आपका टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, and this is the temperature difference of the body and the surroundings, and this k is a constant. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ किया होगा तो वहां से प्रॉपरली ये डिराइव होता है। मैं एकदम बेसिक एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखो, अच्छा ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग है, टेम्परेचर गिरता जा रहा है, तो उसको प्लस करने के लिए एक माइनस हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, तो क्या कह रहा है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 300 केल्विन है और T इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर 400 केल्विन है, और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग वो अपनी हीट लूज कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि किसी भी समय T1 पे उसका टेम्परेचर जब देखा गया तो वो आया 350 केल्विन। आओ इसके अंदर पुट करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेम्परेचर को मैं एक तरफ कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर दें, टाइम 0 से चले गए T1, तो T इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना था बॉडी का, 400 केल्विन। अब कितना हो गया, 350 केल्विन T1 पे। तो क्या आया, ln ऑफ T माइनस, अच्छा इसको 300 लिख लूं, T सराउंडिंग्स 400 से 350 माइनस के T1। ऑलराइट, तो ये आया ln 350 माइनस 300 बाय 400 माइनस 300, लिमिट पुट कर रहा हूँ माइनस के T1। सो यहाँ से हमें पता चला के T1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln 50 बाय 100 ln 1 by 2, और यू कैन राइट के T1 इज इक्वल टू ln ऑफ 2। सो एक इक्वेशन तो मेरी यहाँ से ये है, के T1 की वैल्यू मुझे पता चली कितनी है, ln 2। अब क्या कह रहा है, at time T1 the body X is connected to a large body Y at atmospheric temperature TA through a conducting rod of length L, cross section area A and thermal conductivity capital K. The heat capacity of Y is so large that any variation in its temperature may be neglected. कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी है कैपिटल Y, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी इतनी है कि अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होगा भी तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। द क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज स्मॉल कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द एक्स। ऑलराइट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एक्स एट टी इज इक्वल टू 3T1। अब क्या कह रहा है, अब देखो, अब कह रहा है कि ये सेकंड केस में आपसे बात करना चाह रहा है कि ये आपकी जो बॉडी एक्स थी, ये T इज इक्वल टू T1 पे एक कंडक्टिंग रोड की हेल्प से, एक कंडक्टिंग रोड है, एक बहुत बड़ी बॉडी से कनेक्ट कर दी Y से, जिसका टेम्परेचर कितना है, जो एटमॉस्फेयर का है। क्लियर, अब इसका टेम्परेचर कितना है, इसका तो 350 केल्विन हो गया था सर T1 टाइम पे, और उसी टाइम पे ये जोड़ दिए, ये लेंथ L है और ये एरिया A। अब होगा क्या, जोड़ने से हुआ क्या, कंडक्टिंग रोड को जोड़ने से हुआ क्या, जो ये X है, जो ये बॉडी X है, पहले न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर में अपनी हीट लूज कर रही थी और उसके अकॉर्डिंग ये कूल डाउन हो रही थी। ठीक है, अब क्या अलग हुआ, सर इसको है ना एक बॉडी वाई से जोड़ दिया गया, तो एटमॉस्फेयर में तो ये अभी भी हीट लूज करेगा ही करेगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर तो है ही, पर साथ में कंडक्शन के थ्रू, साथ में कंडक्शन के थ्रू भी हीट लूज करेगा, क्योंकि अब एक कंडक्टिंग रोड से वाई से जोड़ दिया है। अब वाई का टेम्परेचर एक्स के टेम्परेचर से कम है, तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है। इसका मतलब
जो x आपकी बॉडी है, अब ये दो तरीके से हीट लूज करेगी. द वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, in which it will lose heat to the surroundings, and the second one is through the conduction, in which it will lose heat through this conducting rod of length L. All right. तो क्या मैंने क्या बोला? Now dt by dt T of माइनस टी ऑफ एटमोस्फेयर. एक तो ये तरीका है हीट लूज करने का एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. दूसरा क्या है? अच्छा, हीट करंट के बारे में पता है आपको? विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी माइनस के ए डी टी बाई एल. ठीक है. हीट करंट आपने पढ़ा होगा कंडक्शन में. स्टेडी स्टेट आने के, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट, हम दो स्टेट्स पढ़ते हैं. मोस्टली क्वेश्चन स्टेडी स्टेट पे आते हैं, पर ट्रांजिएंट पे भी आ सकता है. क्या अंतर है स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट में? स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है. ठीक है, जिसे फ्लो ऑफ हीट रेट इज कांस्टेंट. बट ट्रांजिएंट स्टेट में ऐसा नहीं होता. ट्रांजिएंट स्टेट में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज हैज डिफरेंट टेम्परेचर, and that is why the rate of flow of heat is variable or different through the cross section of the body. All right. तो हीट करंट क्या है? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई एल. आई होप सो आपको पता होगा. तो डी क्यू बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं माइनस के ए टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई डिवाइड बाय एल. पर टी ऑफ वाई तो टी ऑफ एटमॉस्फेयर के बराबर ही है, तो इसको मैं टी ए ही लिख रहा हूं. और यू कैन राइट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए टी माइनस टी ए डिवाइड बाय एल. जहां पे ये क्या है? के इज योर कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ये के अलग है, ये वाला के अलग है, ये के अलग है. ऐसा करता हूं, इसको है ना छोटा के लिख लेता हूं. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो. यहां पे भी इसको मैं छोटा के लिख रहा हूं, ये छोटा के. क्लियर? ये सारे छोटे के हैं. खैर, छोटा के. बट डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी. स्टार्टिंग में ही पढ़ाते हैं एकदम चैप्टर के. जहां पे एम सी क्या है? कैपिटल सी इंटू डी टी, वेर कैपिटल सी इज हीट कैपेसिटी. ठीक है. ये छोटा सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है भैया. बोथ आर डिफरेंट. ओके. जो हीट कैपेसिटी है कैपिटल सी, इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन. ओके. एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, जो कि छोटा सी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg और 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन. अंतर क्या है दोनों में? एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में. कि जो कैपिटल सी है, कैपिटल सी विच इज हीट कैपेसिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी. कहने का मतलब क्या है? मैंने बोला कि हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अगर मैं सेम मटेरियल लूं, उनकी हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है. थोड़ा ध्यान से सुनना मैं आपको क्या कह रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये एक आयरन स्फीयर है, ये एक और आयरन, ये भी एक आयरन स्फीयर है, बस ये इससे बड़ा है.
दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। अब ये बताओ, अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो किसका जल्दी बढ़ जाएगा, छोटे वाले का या बड़े वाले का? ऑब्वियस सी बात है, छोटे वाले का। छोटे वाले का टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा, मतलब कम हीट देनी पड़ेगी कंपेरेटिवली बड़े के। तो हीट कैपेसिटी छोटे वाले की कम है और बड़े वाले की ज्यादा है। आप इसको ऐसे समझो, आपके पास एक तो ग्लास के अंदर पानी है और एक टब के अंदर पानी है। अब आपने दोनों को गैस पे रख दिया, आप दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हो, किसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, और ग्लास के अंदर रखे हुए पानी का या फिर वो टब में रखे हुए पानी का? ग्लास में रखे हुए पानी का, ऑब्वियसली। तो हीट कैपेसिटी सेम ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करती है। जिसका मास ज्यादा उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे, जब मैंने ऐसे लिखा, तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो होता है छोटा सी, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये 1 kg या 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है कि ये कितनी हीट 1 kg या 1 ग्राम को दूं कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाए। अब वो तो भैया ये एक तरह से तो डेंसिटी जैसा कंसेप्ट हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो डेंसिटी किसी की फिक्स रहती है, आप चाहे छोटा आयरन स्फीयर लो चाहे बड़ा आयरन स्फीयर लो। ऐसे ही अगर 1 kg आयरन का टुकड़ा यहां से ले लूं, 1 kg आयरन का टुकड़ा यहां से ले लूं, तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सेम होगी ना। दोनों 1 किलो हैं, दोनों आयरन है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होती है, पर हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है सेम मटेरियल के लिए भी, क्योंकि वो मास पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो छोटा सी इंटू एम इज कैपिटल सी। क्लियर? और वही चीज मैंने यहां लिखी हुई है। अब ये चीज यहां पुट कर दूं तो क्या आया, सी डी टी बाय डी टी माइनस के ए टी माइनस टी ए डिवाइड बाय एल। और यू कैन राइट डी टी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए टी माइनस टी ए डिवाइड बाय एल सी। ये दूसरी इक्वेशन है आपकी। तो व्हाट अबाउट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2? तो व्हाट अबाउट डी टी बाय डी टी नेट इन सेकेंड केस माइनस के टी माइनस टी ए माइनस के ए टी माइनस टी ए बाय एल सी। क्योंकि ये दोनों तरीके से हीट लूज करेगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से सराउंडिंग्स को, और थ्रू कंडक्शन वाई को कंडक्टिंग रोड से जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से वही खेल, टी माइनस टी ए कॉमन ले लूं, इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस कॉमन ले लें, के प्लस के ए बाय एल सी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, क्या टी वन से टी टी वन, और ये 350 केल्विन से टेम्परेचर ऑफ एक्स पता नहीं भैया कितना हो जाएगा 3T1 के बाद, वही पूछा हुआ है। तो एल एन ऑफ टी एक्स माइनस 300 350 माइनस 300, डायरेक्ट कर रहा हूँ लिमिट पुट करके, सेम पहले जैसा केस है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के प्लस के ए बाय एल सी 2T1। क्लियर? तो क्या है ये, एल एन टी एक्स माइनस 300 बाय 50 माइनस 2 k T1 माइनस 2 k A T1 बाय एल सी। अब देखो देखो, क्या k T1 की वैल्यू पता है? पता है सर। क्या यही वैल्यू, आओ 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 आओ, यही वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। k T1 की वैल्यू है ln2, तो यहाँ पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये आया आपका ln ऑफ टी एक्स माइनस 300 बाय 50 इज इक्वल टू -2 ln2 माइनस
2 Ka T1/LC। ln2 इंटू 2 कितना हो गया? 1.3863। ये आया माइनस का 2 Ka T1/LC। क्लियर? अब क्या करें? एक्सपोनेंशियल ले लो दोनों साइड। तो ये आया e की पावर, माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ से tx इतना आया 350 e की पावर 1.386 प्लस 2 Ka T1/LC। So this will be the temperature at 3T1 of your body X. ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, e की पावर को आप ओपन कर सकते हो, वो आप कर लेना। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये पूरी महाभारत समझ आई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल का सवाल मैंने आपको दिखा दिया है, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, और कल ठीक 4 बजे उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, उसके बाद एज पर द रिक्वेस्ट एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स अच्छे से करेंगे, 2-3 सवाल आगे उसी के होंगे, सिंपल लेवल से अच्छे लेवल पे जाएंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।